Yes, ma'am. Recording has been started. A very wonderful good morning to everyone present over here. Uh, as we all know, we are celebrating the program of Ek Bharat Shrestha Bharat, which has been initiated by the central government and taken up by CBSE and other boards of education, and all the students and teachers and everyone is participating wholeheartedly in all the programs conducted by Ek Bharat Shrestha Bharat program, conducted under this program. Now, in sequence of this program, the state which is allotted to our particular state, that is West Bengal, is uh, pairing with the state of Bihar. And today we are presenting a webinar on the state of Bihar. And as we all know, it is our neighboring state. It is the state where Gautam Buddha has got the wise uh, right of Mahatma, and it is the state of Bodh Gaya, and a very famous state for the litti chokha, and the first president of our country is also from the state of Bihar. So let us celebrate the spirits of those uh, uh, human beings, those great souls of the country, and the rich culture of Bihar through a short program today. And in this sequence, I would like to request our respected principal sir to address us on the occasion, which will be followed by the speeches by the teachers. Actually, sir has got some other program to attend. That's why I'm requesting sir to address us first. Good morning, teachers and dear students. As we know that Ek Bharat Shrestha Bharat is a wonderful program initiated by the Kendriya Vidyalaya Sangathan for the spirit of unity and integrity of India. We are having the partner state Bihar. As Madam told, this is the Holy Land associated with Lord Buddha, his enlightenment, that is Bodh Gaya, and it has a variety of festivals like Chhat Puja and many more. It is having a variety of flora and fauna. The people of Bihar are very much industrious, laborious. They are having a zeal to fight with, how to struggle, and their role in India's freedom struggle is unique. You know Champaran, from where Mahatma Gandhi ji initiated Champaran movement. You know Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of India, and later he was elected as the president of Constitution Assembly of India, under whose chairmanship various committees like drafting committee, etc., were working, and finally it was approved. So he was the chairman of that committee also. See, we can learn a lot of things. The dances of Bihar, the songs, folk songs specifically, their festivals, the flow of river Ganga through Bihar, the holy land of Lord Buddha, and many more things. So the real purpose of Kendriya Vidyalaya Sangathan is to get our students introduced with the variety of culture and many more things. So please go through some books and internet material available about Bihar, and also go through other states of India
so that our unity and integrity of the nation could be strengthened. This is the real purpose. I wish all the teachers and students who are directly and indirectly associated with this organization, organization of this event today, that is 7th of November 2020. So please go ahead, my best wishes, and I request all my students to kindly go through something more, to read something more about Bihar. This is what I want. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your precious words. Now, I would like to request our Santosh Singh, sir, PGT History, to throw some light on the historical background of the state of Bihar. Santosh sir, you are not audible. Sir, your speaker is switched off. Please switch it on. Good morning, respected sir, principal sir, my colleague and dear students. आज हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में और संस्कृत के बारे में प्रकाश डालेंगे और उस पर हम लोग उन तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार भारत का एक प्राचीन भाग क्यों रहा। बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेष राज्य है जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। बिहार के बिना भारत अधूरा है। चिरान जो कि छपरा से 11 किलोमीटर स्थित सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है जिसकी खोज 2000 BC बिफोर हुई। बौद्ध धर्म के लोगों का यहाँ पर विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। इसी पावन भूमि पर महाबोधि मंदिर स्थित है। बिहार पावन भूमि पर अनेक संतों का जन्म। दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उस समय यह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। उस शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने प्राचीन टाइम में भारत ही नहीं उसके लोगों को ज्ञान से प्रकाशित किया। इसी पावन भूमि पर सम्राट अजातशत्रु, बिंबिसार, जरासंध, अशोक जैसे वीर राजाओं का जन्म हुआ। बिंबिसार आदि राजाओं ने बहुत ही अपने पराक्रम से एक विशाल भारत का, एक यूनाइट भारत का निर्माण किया। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार के सीवान जिले में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म भी राजधानी पटना में हुआ था। अनेक विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों की गंदी नीति पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में एक हो गया था। विश्व में शिक्षा का केंद्र का गौरव प्राप्त होने पर भी इस राज्य की साक्षरता दर अन्य राज्यों से कम हो गई और रोजगार न मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। गंगा नदी के दक्षिण तट पे स्थित बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष बिफोर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी मगध की राजधानी कैपिटल बनाई। इससे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। इस प्रकार उदयन ने राजगृह से अपनी नई राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करके अपने मगध एम्पायर की, मौर्य एम्पायर की राजधानी बनाई। बच्चों, ये तो प्राचीन इतिहास हो गया, एक बिहार का जो प्राचीन इतिहास है। और सभी को मालूम है ये बौद्ध बिहार में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्मस्थली के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थल भी एक बिहार है जो कि इस नाम से जाना जाता था। अब थोड़ा संस्कृत में क्या है, बिहार की जो संस्कृति है बच्चों
वो भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत तथा अंश अंश संस्कृतियों का, डिफरेंट तरह की संस्कृतियों का एक मिश्रण है। नगरों तथा गांवों की संस्कृति में अधिक फर्क नहीं है। नगरों में भी लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभी धर्मों के लोग आपसी सहिष्णुता का परिचय देते हैं। जैन व बौद्ध धर्म के जन्मस्थली होने के बावजूद यहाँ पर दोनों धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर कई तरह के त्योहार या पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें छठ एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इसके अलावा होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, महाशिवरात्रि, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ और मनाया जाता है। खान पान में यहाँ पर बिहार अपने खान पान की विविधता के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यंजन पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों के विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त अनरसा की गोली, खाजा, मोतीचूर के लड्डू, तिलकुट यहाँ की खास पसंद व्यंजन है। सत्तू चूड़ा, दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजन ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, अर्थात यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। जातिवाद बिहार की राजनीतिक और आम जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान में काफी हद तक इस भेदभाव को कम किया गया है। खेलकूद में यहाँ पर भारत की कई जगहों की तरह क्रिकेट यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और गोल्फ भी पसंद किया जाता है। हिंदी फिल्मों व संगीत को भी यहाँ पसंद किया जाता है। भोजपुरी फिल्मों को भी अपना एक प्रभुत्व जमाया यहाँ पर। मैथिली व अन्य स्थानीय सिनेमा भी लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। लोग नृत्य, नाटकीय मंचन तथा चित्रकला में अपना योगदान देना पसंद करते हैं। इस प्रकार बिहार की गौरवमय संस्कृति रही है और इस प्रकार भी बिहार का एक गौरवमय अतीत भी रहा है, जो एक भारत के अतीत से जुड़ा हुआ है। बच्चों, बस इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for enlightening us with so varied details about Bihar. Now, I would like to request Jyoti Madam, primary teacher from KVIUC Haldia, to throw some light on the cultural festivities of the state of Bihar. Jyoti Madam, please. Good morning, teachers and my dear friends, dear students. बिहार एक ऐसा स्टेट है जो अभी तक बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, या फिर जानते भी हैं तो इतना उसके बारे में नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को बिहार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ड्रेस ऑफ बिहार। बिहार में एक इम्पॉर्टेंट ड्रेस फॉलो किया जाता है, जिसमें मैन में धोती कुर्ता और वुमेन साड़ी में नजर आती है। हर फेस्टिवल पर एक प्रीशियस थिंग मानी जाती है कि जब भी कोई त्योहार होता है तो लोग ये पहन करके अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं। ताकि आप इसके बारे में जानते होंगे, उसी तरह बिहार में जो मेंस है वो धोती कुर्ता और वुमेन्स है जो साड़ी पहन करके हर फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाती है। और साड़ी भी पहनने का एक अलग तरीका है, वो सीधे पल्ले की साड़ी पहन करके तैयार होती है। तो ये एक अलग चीज हमें वहां पर देखने को मिलती है। फिर अगर अब बात करें हम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार की, तो फेस्टिवल्स में बच्चों आप जनरल फेस्टिवल्स तो वहां पर सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन बिहार के कुछ अपने फेस्टिवल्स भी होते हैं। मैं कुछ फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल्स में सबसे पहले जनवरी में 13 तारीख को होती है हमारी लोहड़ी, जो हर जगह पंजाब में ज्यादा फेमस है। और इसके अगले दिन 14 तारीख को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति बिहार में भी मनाई जाती है, जिसमें लोग दही चूड़ा के और मूढ़ी का लाई बना के, चूड़े का लाई बना करके खाते हैं और पूरे दिन एंजॉय करते हैं। उस दिन खाना मतलब रोटी नहीं बनती है घर में लोगों के, और दही चूड़ा खा के ही घर के सभी लोग इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और एक खास बात है बिहार के फेस्टिवल्स की कि यहाँ पर किसी भी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती।
यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स मनाते हैं वो पूरी तरह हमारे नेचर को डेडिकेटेड को। मकर संक्रांति की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो हम रसोई में जो रोज खाना पकाते हैं तो उसमें अग्नि देव, जो चूल्हे पे अग्नि से हम खाना बनाते हैं उसको पूजा जाता है। उस दिन सभी लोग सुबह सुबह तैयार होकर के और पकवान बनते हैं। पकवान बनने के बाद पहले चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है उसकी, उसके बाद घर के सभी लोग वो खाते हैं। और इस खिचड़ी भी एक मतलब मेन फूड है जो सब लोग खाते हैं। रोटी नहीं बनाई जाती इस दिन। तो ये पूरा जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल है वो अग्नि देव को पूजने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक दूसरा बहुत बड़ा फेस्टिवल जो पूरे बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी कहीं कहीं मनाया जाता है, जो पूजा बरगद के पेड़ की पूजा जाती है। दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल थिंग। एंड इसमें जितने भी विवाहित महिलाएं होती हैं वो पूरा 16 पेड़ की पूजा करती है और अपने जो पति हैं उनकी लंबी आयु की कामना करती है। दिस इज अनदर बिग फेस्टिवल ऑफ द बिहार जो सभी मनाते हैं, कोई भी 1% छूटता नहीं है जो ये एक और फेस्टिवल जो है चौथ चंद्र बोलते हैं इसको चौरचन भी बोला जाता है। इस पूजा करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी ये व्रत रखता है वो पूरे दिन उसका फास्ट और अलग ही फूड होता है, जैसे पूड़ियाँ बनता है, दही होता है, या ये सब बनाया जाता है। और ये सब बना करके केले के पत्ते पर चढ़ा करके छत पर पूजा, और फिर घर के सभी लोग वहीं पर बैठ करके इस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो चौथ चंद्र पूजा ये भी प्रकृति की समर्पित है तो बिहार में। और इसके बाद जो सबसे बड़ा फेस्टिवल जो ऑलमोस्ट सबको पता है वो है छठ पूजा। जनरली बच्चों आप लोगों ने सुना होगा या फिर जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने भी सुना होगा, छठ पूजा जो फेस्टिवल है वो बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी बड़ा फेस्टिवल क्यों है। हम लोग जब भी फास्टिंग रखते हैं तो क्या होता है, एक दिन हम लोग बिना खाए रहते हैं या फिर फ्रूट्स खा के रह जाते हैं। और अगर हम बोले कि बिना पानी का फास्ट रखना है वो एक मुश्किल से कटता है। लेकिन कुछ ऐसा फेस्टिवल है जो दिवाली के अगले दिन से शुरू होकर के षष्ठी तक मनाया जाता है, और जिसमें मेनली 2.5 days का फास्ट होता है, वो भी बिना पानी का। ये बहुत कठिन व्रत होता है जो बहुत मुश्किल है रखना, लेकिन फिर भी यहाँ पे रखा जाता है। इसमें शुरुआत हो जाती है नहाए खाए होता है। दिवाली के तीसरे दिन नहाए खाए के बाद दूसरे दिन खरना, जिसमें शाम के टाइम पे बना के केले के पत्ते पे चढ़ा करके शाम का अर्घ दिया जाता है। इसमें सूर्य देव की पूजा मेनली होती है। सूर्य तब उस ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, और अगले दिन फिर सुबह जब सूरज उगता है तो उसको अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूरज और ढलते हुए दोनों की ही पूजा है। और जब सुबह सूरज उग जाता है 7वें दिन, तब उस दिन वो पूजा समाप्त होती है। तो ये बहुत एक लंबा फेस्टिवल चलता है और ये बिहार में बहुत से मनाया जाता है। छठ पूजा ये जो महिलाएं रखती हैं, किसी की कोई काम वो है, जितने उनकी मनोकामना, मैंने ऐसा नहीं सुना पूरी ना हुई हो। पवित्र त्योहार है बिहार का। तो ये कुछ त्योहार थे, इसके अलावा और भी त्योहार है बिहार के, जैसे जितिया मनाया जाता है, और भी कई जो पूरी तरह से प्रकृति को देना। यहाँ पे किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती है। चंद्रदेव, इसके अलावा पेड़ों की पूजा, अग्निदेव की पूजा, ये सब यहाँ पर मेन यहाँ पे माना जाता है।
फिर अगर मैं बात करती हूँ फोक सॉन्ग्स एंड डांस की, तो मुझे ये बहुत दुख भी होता है और खुशी भी है कि एटलीस्ट हर कोई अपना फोक सॉन्ग डांस है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है कि सभी लोग उसको जाने। अगर आप लोगों से पूछा जाए पंजाब का फोक सॉन्ग क्या है, फोक डांस क्या है, आप भांगड़ा है, गुजरात का गरबा है, राजस्थान का झूमर है, लेकिन बिहार के फोक सॉन्ग और फोक डांस के बारे में जनरली लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी हमें चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर जानेंगे हमें पता है कि इसका भी कल्चर कितना डाइवर्स है। तो मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी और इसके बारे में दिखाना भी चाहूंगी। लेट मी शो यू। यस, बिहार इंडिया, इसमें जैसे कुछ सब्जियां, ये डांस है, पता है, बहुत ज्यादा फेस्टिवल को मनाने के लिए गाना गाया जाता है। ये डांस फॉर्म है। फगुआ जो है, हर पे इस तरह के फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रा सारा रा 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 होली है, इस तरीके से है बिहार का। वो एक तरीके से जैसे गुजरात में गरबा होता है, उसी तरह बिहार का झुमरी डांस है। झिझिया जो डांस है बच्चों, वो रेनिंग सीजन के लिए गाया जाता है। इसमें जैसे जब ड्रॉप की सिचुएशन आती है, सूखा पड़ जाता है, तो इसकी पूजा की जाती है कि बारिश जल्दी हो और लोगों को पानी मिल सके। तो ये रेन के लिए बेसिकली की जाती है। ठीक है। जाट जटिन जो है डांस है नॉर्थ बिहार का। कि जो पर्सन है वो कहीं लाइवलीहुड कमाने के लिए, जो मैन है घर का, वो बाहर जाता है, फिर उसके जो स्पाउस है वो के वे कुछ गाने गाए हैं जो इस जाट जटिन फोक डांस में दिखाया जाता है। इसके फेमस डांस है गुजरात के, जैसे बिहार का कजरी डांस, और इसमें जब बारिश होती है तो उसमें डांस और फिर sung on the occasion of birth of a child। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पर सोहर गाया जाता है, ताकि उस so अगर लैंग्वेज करती आप भोजपुरी सुना होगा, लेकिन भोजपुरी के अलावा दो और इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जैसे मैथिली और मगही। मैथिली मेरी भी भाषा है, तो भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीन इम्पोर्टेंट भाषा जो है बिहार में बोली जाती है। इसके अलावा कई और भाषाएं भी हैं, जैसे माझी, मुसासा, नागपुरी। नागपुरी झारखंड में अब बोली जाती है ज्यादा, लेकिन कुछ बिहार के हिस्सों में भी ये बोली जाती है। कुमाली, ये लैंग्वेजेस हैं जो बिहार में बोली जाती है। तो इस तरीके से बिहार का कल्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और जब हम इसके बारे में जानने जाते हैं तो बहुत कुछ हमें मिलता है। बिहार में फूड में भी देखें हम तो कुछ अलग ही देखने को हमें मिलता है। जैसे सर ने बताया, लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं। यहाँ पर सिंघाड़ा खाया जाता है, लिट्टी चोखा खाया जाता है। इसके अलावा पे दही चूड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दही चूड़ा खाया जाता है, खा करके फेस्टिवल मनाया जाता है। इस तरीके से बिहार तो आप उसको करने लगेंगे और आपको जान के अच्छा लगेगा कि बिहार के बारे में इतना कुछ जानने को है। इसी आपको सभी को धन्यवाद।
Thank you so much, Jyoti madam, for giving in such detailed cultural diversity and the festivals and languages. You have touched on every point, and we have collected some pictures taken on the occasion of Chhat Puja, which was celebrated last year. So I wanted to show everyone about the different rituals which was undertaken during the Chhat Puja, and these are the pictures which are taken in the last year, and even there are some videos also. This is the pond inside cluster 21 of Haldia township, where this celebration is has taken place in a great grand manner last year. Although this year the festival has not been celebrated yet, it is going to be celebrated, but as everybody knows, there is corona pandemic, so maybe there will be less gathering of people, but these pictures are taken last year. So we just wanted to have a look at those pictures. And then a very small child of our school, she is presenting Kajri dance. Let us enjoy her dance. Ma'am, I think voice is not audible. Yes, I think there is some technical problem regarding. Okay, that's why I've stopped the video, madam, for now. Okay. So thank you everyone for attending the webinar, and I hope everyone has got a lot of knowledge about the state of Bihar, and there lies the spirit of this program, Ek Bharat Shresth Bharat, so that we can come in contact with the cultural diversities of different states and the rich cultural heritage, and every aspect of that particular state is touched upon. And in this way, we are going to learn a lot. And in our next sessions, we will also learn many new things about other different states. And with this note, we are concluding the program today. I hope everyone has got something to learn. And in near future, everybody will try to join this program, and they have to contribute. So they will definitely contribute something on this program. Thank you so much, and thank you everyone for joining us. Have a good day. Thank you, you. ma'am. Bye. Thank you, ma'am.